Welcome back everyone. In this session, we'll revise the current affairs of the last 1 month, carefully selected for all competitive exams. Let's begin. 1st of February 2026 Current Affairs 1. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर 6.8% से 7.2% के बीच है. According to the Economic Survey 2025-26, India's projected real GDP growth rate for FY 2026-27 is between 6.8% and 7.2%. 2. भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन की देखरेख में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 तैयार किया गया था. The Economic Survey 2025-26 was prepared under the supervision of Chief Economic Advisor V. Ananta Nageshwaran. 3. सौरभ जोशी को चंडीगढ़ नगर निगम का नया महापौर चुना गया है. सौरभ जोशी has been elected as the new mayor of the Chandigarh Municipal Corporation. 4. हरियाणा और राजस्थान ने भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से यमुना का पानी पहुंचाने के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए हैं. Haryana and Rajasthan have signed an MoU to supply Yamuna River water through underground pipelines. 5. माइकल नोब्स भारत की पुरुष हॉकी टीम के पूर्व मुख्य कोच थे. माइकल नोब्स was the former head coach of the Indian men's hockey team. 6. सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम 2026 पर रोक लगा दी है. The Supreme Court has stayed the UGC Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations 2026. 7. मणिपुरी फिल्म बूंग को BAFTA फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया है. The Manipuri film, Boong, has been nominated in the Best Children's and Family Film category at the BAFTA Awards 2026. 8. PFRDA ने एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना शुरू की है. The PFRDA has launched the NPS स्वास्थ्य पेंशन स्कीम. 9. भारत में जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष 2022-23 तय किया गया है. The new base year for calculating GDP in India is 2022-23. 10. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के लिए संशोधित नया आधार वर्ष 2024 होगा. The revised new base year for the Consumer Price Index is 2024. 11. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना अब 2022-23 आधार वर्ष पर की जाएगी. The index of industrial production will now be calculated with 2022-23 as the base year. 12. महाराष्ट्र को राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार मिला है. Maharashtra received the first prize for the best tableau in the state's UTS category. 13. भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार दिया गया है. The Indian Navy was awarded the Best Marching Contingent Award. 14. आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में 38वां स्थान प्राप्त किया है. According to the Economic Survey, India ranked 38th in the Global Innovation Index 2025. 15. नए नियमों के अनुसार कचरे को 4 श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य होगा. According to the new rules, waste must be separated into 4 categories. The 2nd of February 2026 Current Affairs. 1. अमेरिका के स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने भारत को शिव नटराज सहित 3 प्राचीन कांस्य मूर्तियां लौटाने का निर्णय लिया है. The Smithsonian's National Museum of Asian Art in the USA has decided to return 3 ancient bronze sculptures including Shiva Nataraj to India. 2. डोनाल्ड ट्रंप ने केविन वार्श को अमेरिकी फेडरल रिजर्व का अगला अध्यक्ष नामित किया है. Donald Trump has nominated Kevin Warsh as the next chairman of the U.S. Federal Reserve. 3. सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत घोषित किया है. The Supreme Court has declared the right to menstrual health under Article 21 of the Constitution. 4. केंद्र सरकार ने चंडीगढ़, पुडुचेरी और गुजरात के 3 जिलों में डिजिटल फूड कूपन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है.
The central government has launched a pilot project of digital food coupons in Chandigarh, Puducherry, and 3 districts of Gujarat. 5. सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है. Sunetra Pawar has taken oath as the first woman deputy chief minister of Maharashtra. 6. हरियाणा ने भारतीय रेलवे को हराकर 72वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है. Haryana won the 72nd Senior National Women's Kabaddi Championship by defeating Indian Railways. 7. विंग्स इंडिया 2026 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली was selected as the best airport of the year at Wings India 2026. 8. एलिना रिबाकिना ने मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब जीता है. एलिना राइबेकिना won the women's singles title at the Australian Open 2026 held in Melbourne. 9. भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2026 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है. The Indian Coast Guard celebrated its 50th Foundation Day on the 1st of February 2026. 10. केरल के तिरुनावया में आयोजित महामग महोत्सव को दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहा जाता है. The Mahamagha Mahotsav held in Tirunave, Kerala is referred to as the first Kumbh Mela of South India. 11. उत्तर प्रदेश के एटा स्थित पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ स्थित छारी ढांड को रामसर सूची में शामिल किया गया है. पटना बर्ड सैंक्चुरी इन एटा, उत्तर प्रदेश and छारी ढांड in Kutch, Gujarat have been added to the Ramsar list. 12. हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव का 39वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है. The 39th edition of the Surajkund International Self-Reliant Crafts Festival is being held in Faridabad, Haryana. 13. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सेल BRATION नामक प्रतियोगिता शुरू की है. Steel Authority of India Limited has launched a competition called SAIL BRATION. 14. 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित किया गया है. The 39th Indian International Leather Fair has been organized in Chennai, Tamil Nadu. 15. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है. The Indian Institute of Foreign Trade secured first position nationwide in the Times B School Ranking 2026. The 3rd of February 2026 Current Affairs. 1. जलंधर पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा रखा गया है. Adampur Airport in Jalandhar, Punjab has been renamed as Shri Guru Ravidas Ji Airport. 2. हाल ही में भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी. The India-Arab Foreign Ministers meeting was recently held in New Delhi. 3. फरीदाबाद में आयोजित सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 के लिए मिस्र को साझेदार देश बनाया गया है. Egypt has been selected as the partner country for the Surajkund International Crafts Mela 2026 held in Faridabad. 4. केरल फॉर ऑल समावेशी पर्यटन शिखर सम्मेलन कोची में आयोजित किया जा रहा है. The Kerala for All Inclusive Tourism Summit is being organized in Kochi. 5. ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है. Carlos Alcaraz won the men's singles title at the Australian Open 2026. 6. एयर इंडिया ने लगभग 6 वर्षों के बाद दिल्ली से शंघाई के लिए सीधी उड़ान सेवा फिर से शुरू की है. Air India has resumed its direct flight service from Delhi to Shanghai after nearly 6 years. 7. वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है. According to the Ministry of Finance, India's real GDP growth rate for 2025-26 is estimated at 7.4%. 8. वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 में नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर 8% रहने का अनुमान लगाया है. The Finance Ministry has projected a nominal GDP growth rate of 8% for 2025-26.
9. एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया ने पूर्वी वायुसेना कमान के नए कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। Air Marshal Inderpal Singh Walia has assumed charge as the new air officer commanding in chief of the Eastern Air Command. 10. भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर तलोजा, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में उद्घाटित किया गया है। इंडियाज फर्स्ट भारत रत्न डॉक्टर Baba Saheb Ambedkar Advocate Training and Research Center has been inaugurated in Taloja, Navi Mumbai, Maharashtra. 11. बजट 2026-27 के अनुसार रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का कुल आवंटन किया गया है। According to the 2026-27 budget, a total allocation of 7.85 lakh crore rupees has been made for the defense sector. 12. महिला प्रीमियर लीग में शतक बनाने वाली पहली खिलाड़ी नैट साइवर ब्रंट बनी हैं। Nat Saivor Brunt became the first player to score a century in the Women's Premier League. 13. भारतीय स्टेट बैंक ने सनराइज सेक्टर्स के वित्तपोषण के लिए चक्र योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। The State Bank of India has announced the launch of Chakra to finance sunrise sectors. 14. भारत का केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया था। India's Union Budget for 2026-27 was presented in Parliament on February 1, 2026. 15. केंद्रीय बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है। The fiscal deficit target in the Union Budget 2026-27 has been set at 4.3% of GDP. 2026 Current Affairs. 1. हाल ही में रुसोमा संतरा महोत्सव का 5वां संस्करण नागालैंड राज्य में शुरू हुआ है। The 5th edition of the Rusoma Orange Festival recently began in Nagaland. 2. बायोफार्मा शक्ति पहल का प्राथमिक उद्देश्य बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। The primary objective of the Biopharma Shakti initiative is to increase India's self-reliance in biologics and biosimilars. 3. बजट 2026-27 में डेनकुनी पश्चिम बंगाल को गुजरात के सूरत शहर से जोड़ने वाले नए समर्पित माल ढुलाई गलियारे की घोषणा की गई है। The budget 2026-27 announced a new dedicated freight corridor connecting Dankuni to Surat in Gujarat. 4. बजट 2026 में कृषि क्षेत्र के लिए भारत विस्तार नामक AI आधारित टूल की घोषणा की गई है। An AI-based tool named Bharat Vistar has been announced for the agriculture sector in budget 2026. 5. बजट 2026-27 में उल्लिखित ISM 2.0 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से संबंधित है। ISM 2.0 mentioned in the 2026-27 budget is related to the India Semiconductor Mission. 6. दुर्लभ मृदा गलियारे उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित किए जाएंगे। Rare earth corridors will be established in Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. 7. प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब हरियाणा थंडर्स टीम ने जीता है। हरियाणा थंडर्स won the Pro Wrestling League 2026 title. 8. वाशिंगटन में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन का खिताब भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह ने जीता है। इंडियन प्लेयर अनाहत सिंह won the Squash on Fire Open title held in Washington. 9. पद्मश्री के लिए चयनित संत निरंजन दास डेरा सचखंड बल्ला, जालंधर के प्रमुख हैं। Sant Niranjan Das, selected for the Padma Shri Award, is the head of Dera Sachkhand Ballan, Jalandhar. 10. बजट 2026-27 में सरकार ने औद्योगिक गलियारों के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। The government has proposed to establish 5 university townships near industrial corridors in budget 2026-27. 11. बजट 2026-27 में ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। 7 new high-speed rail corridors have been announced as growth connectors in budget 2026-27. 12. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 नामक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की है।
Union Minister Mansukh Mandaviya launched the nationwide initiative My Bharat Budget Quest 2026. 13. सर्वोच्च न्यायालय ने पेन्नैयार नदी जल विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है. The Supreme Court has directed the formation of a tribunal to resolve the Pennayar River water dispute. 14. सेल ने डीजल लोकोमोटिव की लीजिंग और रखरखाव के लिए राइट्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है. SAIL has signed an MOU with Rights Limited for leasing and maintenance of diesel locomotives. 15. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पहनी गई कट्टम कांजीवरम साड़ी का संबंध तमिलनाडु से है. The Kattam Kanjivaram sari worn by Finance Minister Nirmala Sitharaman is associated with Tamil Nadu. The 5th of February 2026 Current Affairs. 1. Best Audiobook, नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड 2026 दलाई लामा ने जीता है. Dalai Lama has won the Grammy Award 2026 in the Best Audiobook, Narration, and Storytelling Recording category. 2. एशियाई राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी नई दिल्ली में की जा रही है. The Asian Rifle and Pistol Shooting Championship 2026 is being hosted in New Delhi. 3. सिंगापुर एयर शो 2026 में भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम भाग ले रही है. The Sarang helicopter display team of the Indian Air Force is participating in the Singapore Air Show 2026. 4. नए भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों पर शुल्क 25% से घटाकर 18% कर दिया है. Under the new India-US trade agreement, the US has reduced tariffs on Indian goods from 25% to 18%. 5. रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में आर्मेनिया का दौरा किया है. To strengthen defense ties, General Anil Chauhan recently visited Armenia. 6. इसरो ने PSLV प्रक्षेपण यान की लगातार विफलताओं की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति गठित की है. ISRO has formed an independent committee to investigate repeated failures of the PSLV launch vehicle. 7. 4 Stars of Destiny पुस्तक पूर्व सेना प्रमुख जनरल M. नरवणे का संस्मरण है. The book 4 Stars of Destiny is the memoir of former Army Chief General M. नरवाने. 8. माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है. Mount Aconcagua is the highest peak in South America. 9. 61वां बिएनाले डी वेनेजिया अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन इटली में किया जा रहा है. The 61st La Biennale di Venezia International Art Exhibition is being held in Italy. 10. पैट्रिक हर्मिनी सेशल्स देश के राष्ट्रपति हैं. पैट्रिक हर्मिनी इज द प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स. 11. यंत्र इंडिया लिमिटेड को रक्षा मंत्रालय द्वारा मिनीरत्न श्रेणी आई का दर्जा प्रदान किया गया है. Yantra India Limited has been granted Mini Ratna Category I status by the Ministry of Defence. 12. श्री दिवाकर जयंत ने नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है. श्री दिवाकर जयंत has assumed charge as the Director General of Naval Armaments. 13. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 43वीं बैठक की अध्यक्षता श्री भूपेंद्र यादव ने की है. श्री भूपेंद्र यादव चेयर द 43rd मीटिंग ऑफ द सेंट्रल जू अथॉरिटी. 14. बजट 2026-27 के तहत शिक्षा मंत्रालय को 1,39,289 रुपये और 48 पैसे करोड़ की राशि आवंटित की गई है. An amount of 1,39,289 रुपये और 48 पैसे crore has been allocated to the Ministry of Education under the 2026-27 budget. 15. विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 की थीम आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव थी. The theme of World Wetlands Day 2026 was Wetlands and Traditional Knowledge, Celebrating Cultural Heritage. The 6th of February 2026 Current Affairs. 1. कर्नाटक विधानसभा ने केंद्र सरकार के विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी ग्राम जी अधिनियम 2025 के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है. Karnataka State Assembly passed a resolution opposing the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB Gram G Act, 2025.
2. डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट SFDR मिसाइल प्रणोदन तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किया है। DRDO successfully tested the solid fuel ducted Ramjet SFDR missile propulsion technology from Chandipur, Orissa. 3. ह्यूग गेंट्ज़ एक प्रसिद्ध यात्रा वृतांत लेखक थे और उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। Hugh Gantzer was a renowned travel writer and a Padma Shri awardee. 4. नेमचा किपगन को मणिपुर की पहली महिला उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। Nemcha Kipgen has been appointed as the first woman Deputy Chief Minister of Manipur. 5. एम्स नई दिल्ली ने टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम विकसित करने के लिए IIT दिल्ली के साथ सहयोग किया है। एम्स न्यू दिल्ली collaborated with IIT Delhi to develop a tele robotic ultrasound system. 6. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटाने की मंजूरी दी है। President Draupadi Murmu approved the lifting of President's rule in Manipur. 7. भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को ब्रिक्स इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंस सेंटर BCIC के रूप में नामित किया गया है। The National Productivity Council has been designated as the BCIC in India. 8. भगवान बुद्ध के देवनीमोरी अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए श्रीलंका भेजा गया है। The Devnimori relics of Lord Buddha were sent to Sri Lanka for an international exhibition. 9. लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और वे फरवरी में भारत आएंगे। Luis Inacio Lula da Silva is the president of Brazil and is scheduled to visit India in February. 10. भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण शुरू हुआ है। The 13th edition of the Khanjar Joint Military Exercise has begun between India and Kyrgyzstan. 11. सरकार ने केंद्रीय बजट में 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत सांस्कृतिक स्थलों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। The government has proposed to develop 15 archaeological sites as vibrant cultural sites in the union budget. 12. युमनाम खेमचंद सिंह ने 4 फरवरी 2026 को मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। युमनाम खेमचंद सिंह was sworn in as the new Chief Minister of Manipur on February 4, 2026. 13. आंध्र प्रदेश सरकार ने पिलू AI नामक वॉइस बेस्ड अकाउंटिंग ऐप लॉन्च किया है। The Andhra Pradesh government launched a voice-based accounting app called Pilu AI. 14. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने तेलंगाना में डिक्लिप्टेरा पाखालिका नामक नई पुष्पीय पौधे की प्रजाति खोजी है। The Botanical Survey of India discovered a new flowering plant species Dicliptera pakhalika in Telangana. 15. धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य में स्थित है। The Dholpur Karoli Tiger Reserve is located in Rajasthan. The 7th of February 2026 Current Affairs. 1. उधमपुर जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ वन क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियान का कोडनेम ऑपरेशन किया था। The codename of the anti-terror operation conducted by the Indian Army in Basongad forest area of Udhampur was Operation Kiya. 2. भारत ने अफगानिस्तान को हराकर 10वीं बार अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई। इंडिया defeated Afghanistan to reach the under-19 cricket World Cup final for the 10th time. 3. बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2026 का आयोजन स्पेन में किया जा रहा है। The Boxam Elite International Boxing Tournament 2026 is being held in Spain. 4. फरवरी 2026 में मध्य प्रदेश में बोत्सवाना से 8 चीते लाए जाएंगे। In February 2026, 8 cheetahs will be brought to Madhya Pradesh from Botswana. 5. भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी है, जिसका उद्घाटन अमित शाह ने किया। India's first cooperative-based ride-hailing platform as Bharat Taxi, inaugurated by Amit Shah. 6. सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा राज्य में स्थित है, जिसका दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। Similipal Tiger Reserve is located in Odisha, which was visited by President Draupadi Murmu. 7. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में बस्तर पांडुम 2026 महोत्सव का उद्घाटन किया।
President Draupadi Murmu inaugurated the Buster PANDUM 2026 festival in the Buster region of Chhattisgarh. 8. प्लास्ट इंडिया 2026 प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है. The Plast India 2026 exhibition is being held in New Delhi. 9. भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी ओमान के सलालाह बंदरगाह पर पहुंचा. Indian Navy's training ship in Sudarshini reached the port of Salalah in Oman. 10. सरकार ने औषधीय पौधों की खेती के लिए मूल प्रमाण पत्र जारी करने हेतु डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है. The government launched a digital portal to issue certificates of origin for medicinal plant cultivation. 11. फरवरी 2026 में एलन मस्क $800 बिलियन की व्यक्तिगत संपत्ति पार करने वाले पहले व्यक्ति बने. In February 2026, Elon Musk became the first person to surpass $800 billion in personal wealth. 12. शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन इटली के मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो शहरों में होगा. The 2026 Winter Olympics will be held in Milan and Cortina d'Ampezzo cities of Italy. 13. स्पेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. Spain has announced a complete ban on social media use for children under 16 years of age. 14. राखीगढ़ी की खुदाई में चूल्हे के साथ मिट्टी की डाइनिंग टेबल के प्रमाण मिले हैं. The excavation at Rakhigiri revealed evidence of a stove along with a clay dining table. 15. प्रसिद्ध समाजशास्त्री आंद्रे बेते का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया. Renowned sociologist Andrei Bataille passed away at the age of 91. The 8th of February 2026 Current Affairs. 1. हाल ही में भारतीय शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता रूबल नागी को प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइड से सम्मानित किया गया है. Recently, Indian teacher and social activist Rubal Nagi was awarded the prestigious Global Teacher Prize. 2. दिल्ली कैपिटल्स को हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता है. Royal Challengers Bengaluru won the Women's Premier League 2026 title by defeating Delhi Capitals. 3. मिलानो कोर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए अभिनव बिंद्रा को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है. Abhinav Bindra has been selected as a torchbearer for the Milano Cortina 2026 Winter Olympics. 4. 2026 अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल जिम्बाब्वे के हरारे शहर में खेला जाएगा. The final of the 2026 Under-19 Cricket World Cup will be played in Harare, Zimbabwe. 5. पश्चिम बंगाल सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए बांग्ला युवा साथी नामक नई योजना की घोषणा की है. The West Bengal government has announced a new scheme called Bangla Yuva Sathi for unemployed youth. 6. भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराकर छठी बार अंडर-19 वनडे क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है. The Indian cricket team won the Under-19 One-Day World Cup for the sixth time by defeating England. 7. नई दिल्ली ने 1989 के बाद पर्यटन के लिए डबल डेकर बसों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है. New Delhi has announced the reintroduction of double-decker buses for tourism after 1989. 8. वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन दुबई में किया गया था. The World Government Summit 2026 was held in Dubai. 9. केंद्र सरकार और नागालैंड सरकार ने ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. The Central and Nagaland governments signed a historic tripartite agreement with the Eastern Nagaland People's Organization. 10. भारत अमेरिका संयुक्त तकनीकी समूह की 24वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी. The 24th meeting of the India-USA Joint Technical Group was held in New Delhi. 11. मीराबाई चानू ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता है. मीराबाई चानू won the gold medal at the 2026 National Weightlifting Championships by setting 3 new national records. 12. भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है.
The Reserve Bank of India maintained the repo rate at 5.25% in its February 2026 policy review. 13. पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बोर्ड ने आरईसी लिमिटेड के साथ मेगा विलय को मंजूरी दी है. The Power Finance Corporation Board approved a mega merger with REC Limited. 14. वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का आयोजन सऊदी अरब के रियाद शहर में किया जा रहा है. The World Defense Show 2026 is being organized in Riyadh, Saudi Arabia. 15. वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 का विषय द फ्यूचर ऑफ डिफेंस इंटीग्रेशन रखा गया है. The theme of the World Defense Show 2026 is the future of defense integration. The 9th of February 2026 current affairs. 1. फरवरी 2026 में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव बनाए गए हैं. In February 2026, Surya Kumar Yadav was appointed as the captain of the Indian team for the T20 World Cup. 2. हाल ही में 12वीं एशियाई इंडो एथलेटिक्स चैंपियनशिप तियानजिन, चीन में आयोजित की गई. Recently, the 12th Asian Indoor Athletics Championships was held in Tianjin, China. 3. नीदरलैंड की रानी मैक्सिमा हाल ही में सेना में रिजर्विस्ट के रूप में शामिल हुई. Recently, Queen Maxima of the Netherlands joined the army as a reservist. 4. राइट टू डिस्कनेक्ट बिल का उद्देश्य कर्मचारियों को ऑफिस समय के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल से बचाना है. The right to disconnect bill aims to protect employees from work-related calls and emails after office hours. 5. एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रुद्राक्ष पाटिल ने स्वर्ण पदक जीता. Rudraksh Patil won the gold medal in the men's 10-meter air rifle event at the Asian Shooting Championships. 6. आरबीआई ने एमएसएमई के लिए बिना गिरवी लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है. The RBI has increased the collateral-free loan limit for MSMEs from 10 lakh rupees to 20 lakh rupees. 7. डिजिटल धोखाधड़ी के छोटे मामलों में ग्राहकों को अधिकतम 25,000 रुपये तक मुआवजा दिया जाएगा. Customers will receive compensation of up to 25,000 rupees in cases of low-value digital fraud. 8. भारत की क्वांटम वैली की आधारशिला आंध्र प्रदेश के अमरावती शहर में रखी गई है. The foundation stone of India's quantum valley was laid in Amravati, आंध्र प्रदेश. 9. न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका और रूस के बीच एक रणनीतिक हथियार कटौती समझौता है. The New START Treaty is a strategic arms reduction agreement between the USA and Russia. 10. U19 विश्व कप 2026 के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी को मैन ऑफ द मैच और पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज चुना गया. वैभव सूर्यवंशी received the Man of the Match and Man of the Series awards in the U19 World Cup 2026. 11. डीआरडीओ ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया. डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड द अग्नि 3 मिसाइल फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड, ओडिशा. 12. कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है. कुनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. 13. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश से देशव्यापी दलहन क्रांति की शुरुआत की. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan launched the nationwide Pulses Revolution from Madhya Pradesh. 14. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सोराया अघाई को ईरान की पहली महिला सदस्य के रूप में चुना. The International Olympic Committee elected Soraya Aghai as the first female member from Iran. 15. दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र अभियान शुरू किया. Delhi Police launched Operation Shastra to curb the display of weapons on social media. 10th of February 2026 Current Affairs. 1. कार्डिनल पोला एंथनी को कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (CBCI) का नया अध्यक्ष चुना गया है और वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित हैं. Cardinal Pola Anthony has been elected as the new president of the Catholic Bishops' Conference of India (CBCI) and is the first Dalit to hold this post. 2. एम. राजा तमिलनाडु ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों के 65 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता.
M. Raja Tamil Nadu won the gold medal in the men's 65 kilograms category at the National Weightlifting Championship 2026. 3. अलावेनिल वलारिवन ने स्वर्ण और मेघना सज्जनार ने कांस्य पदक नई दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीता. Alavenil Valarivan won gold and Meghana Sajjanar won bronze in the 10m air rifle event at the Asian Championships in New Delhi. 4. नामीबियाई चीता आशा ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया. The Namibian cheetah Asha gave birth to 5 cubs in Kuno National Park, मध्य प्रदेश. 5. कोपरा सिंचाई परियोजना के लिए भूमि डायवर्जन को मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में मंजूरी दी गई. Land diversion for the Kopra irrigation project was approved in the core area of Virangana Durgavati Tiger Reserve, मध्य प्रदेश. 6. USTR मानचित्र में पहली बार जम्मू कश्मीर और अक्साई चिन को भारत का अभिन्न अंग दिखाया गया. Jammu और कश्मीर and Aksai Chin were shown as integral parts of India for the first time in the USTR map. 7. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डों पर कैब सेवाओं के लिए भारत टैक्सी के साथ समझौता किया. The Airports Authority of India signed an MOU with Bharat Taxi to launch regulated cab services at airports. 8. V.O. चिदम्बरनार पोर्ट भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बना जहां उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया. V.O. चिदम्बरनार पोर्ट became the first major port in India to deploy an advanced anti-drone system. 9. बजट 2026-27 में खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की घोषणा की गई. The Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative was announced in the Union Budget 2026-27 for khadi, handloom and handicrafts. 10. सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 के थीम राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय हैं. उत्तर प्रदेश and मेघालय are the theme states for the Surajkund International Crafts Fair 2026. 11. शारदा नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है. The Sharda River is a tributary of the Ghaghra River. 12. झारखंड के दलमा वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटन मंत्री द्वारा जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया. A jungle safari was inaugurated at Dalma Wildlife Sanctuary by the Tourism Minister of Jharkhand. 13. यूरेशियन उदबिलाव को जम्मू कश्मीर की सिंध नदी में देखा गया. The Eurasian otter was spotted in the Sindh River in Jammu and Kashmir. 14. मेडाराम जातरा तेलंगाना राज्य का एक प्रमुख आदिवासी त्योहार है. मेडाराम जातरा इज ए मेजर ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना. 15. ऑपरेशन साइहाक 3.0 दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया गया. ऑपरेशन सिएक 3.0 was launched by the Delhi Police. The 11th of February 2026 करंट अफेयर्स. 1. हाल ही में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत ने डिजिटल भुगतान और सेमीकंडक्टर सहित 11 समझौतों पर मलेशिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं. Recently, during PM Modi's visit, India signed 11 agreements with Malaysia, including in digital payments and semiconductors. 2. भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए निकोस डेंडियास ग्रीस के रक्षा मंत्री हैं. Nikos Dendias, who is on an official visit to India, is the defense minister of Greece. 3. अमेरिका ने भारत को सुरक्षित सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला के लिए पैक्स सिलिका नामक रणनीतिक पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है. The US has invited India to join a strategic initiative called Pax Silica for a secure silicon supply chain. 4. नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में अलावेनिल वालारिवन और अर्जुन बबूता ने स्वर्ण पदक जीता. Alavenil Valarivan and Arjun Babuta won the gold medal in the 10m air rifle mixed team event at the Asian Rifle Pistol Championship 2026 held in New Delhi. 5. BOXAM Elite International Boxing Tournament स्पेन के ला नूसिया में आयोजित किया गया था, जहां भारत ने 9 स्वर्ण पदक जीते. The BOXAM Elite International Boxing Tournament was held in La Nucia, Spain, where India won 9 gold medals. 6. उत्तराखंड क्रिकेट टीम ने झारखंड को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर इतिहास रचा. The Uttarakhand cricket team created history by defeating Jharkhand and entering the Ranji Trophy semi-finals for the first time. 7.
भारत की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के लिए बेंगलुरु में सरला एविएशन कंपनी ट्रायल रन कर रही है। सरला एविएशन कंपनी इज कंडक्टिंग ट्रायल रन्स फॉर इंडियाज इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज इन बेंगलुरु। 8. हाल ही में चर्चा में रही दारमा घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। The recently discussed Dharma Valley is located in the state of Uttarakhand. 9. कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को बासमती चावल की 25 से अधिक किस्में विकसित करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। Agricultural scientist Dr. Ashok Kumar Singh has been selected for the Padma Shri Award for developing more than 25 varieties of basmati rice. 10. धन्या नाथन सी केरल न्यायिक सेवा में पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी हैं। Thanya Nathan C has become the first visually challenged woman judge in the Kerala Judicial Service. 11. ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 का आयोजन हाल ही में भुवनेश्वर में किया गया है। The Black Swan Summit India 2026 was organized recently in Bhubaneswar. 12. ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। India has secured the fourth rank in the Global Firepower Index 2026. 13. राजस्थान का अलवर जिला 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बना है। Alwar district of Rajasthan has become the first district in India to achieve 100% insurance coverage. 14. एशियाई चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने रजत पदक जीता है। Manu Bhaker has won the silver medal in the 25m pistol event at the Asian Championships. 15. दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून AI बेसिक एक्ट लागू किया है। South Korea has enacted the world's first comprehensive artificial intelligence law, called the AI Basic Act, 12th of February 2026. Current affairs. 1. भारतीय सेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए नेपाल की सेना को 50 विशेष सैन्य वाहन सौंपे हैं। The Indian Army has handed over 50 special military vehicles to Nepal to strengthen defense cooperation. 2. दिल्ली के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO के रूप में अशोक कुमार IAS को नियुक्त किया गया है। अशोक कुमार IAS has been appointed as the new Chief Electoral Officer of Delhi. 3. केरल में खोजी गई लिरियोथेमिस कैलेंसिस ड्रैगनफ्लाई की एक नई प्रजाति है। Liriothemis carolensis discovered in Kerala is a new species of dragonfly. 4. मिशन शक्ति अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल है। मिशन शक्ति अभियान is a major initiative of the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। 5. बायोफेच 2026 में भारत को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश पुरस्कार मिला है। India has received the Country of the Year award at BioFact 2026. 6. राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार भारत ने 272 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। According to a राज्यसभा reply, India has achieved 272 gigawatts of renewable energy capacity. 7. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के लिए $175 मिलियन के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। Prime Minister Narendra Modi has announced a special economic package of $175 million for Seychelles. 8. भारतीय सेना ने विशेष बैंकिंग सेवाओं के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के साथ समझौता किया है। The Indian Army has signed an MOU with IDFC First Bank for specialized banking services. 9. डाक विभाग ने म्यूचुअल फंड उत्पादों के वितरण के लिए NSE के साथ समझौता किया है। The Department of Posts has signed an MOU with NSE for distributing mutual fund products. 10. लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 94C के अंतर्गत है। The provision for removing the Lok Sabha Speaker is under Article 94C of the Constitution. 11. चंद्रयान 4 मिशन के लिए मॉन्स माउंटेन को लैंडिंग साइट के रूप में चुना गया है। Mons Mouton has been selected as the landing site for the Chandrayaan 4 mission. 12. तमिलनाडु सरकार ने बादाम के सिरप में मिलावट पाए जाने पर सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। The Tamil Nadu government issued a public notice after adulteration was found in badam kit syrup. 13. इथियोपिया ने इरिट्रिया को अपनी सेना तुरंत वापस बुलाने का आदेश दिया है।
Ethiopia has ordered Eritrea to immediately withdraw its army. 14. मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य में स्थित है. मेलघाट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र. 15. लिम्फेटिक फाइलेरिया को आम भाषा में हाथी पांव कहा जाता है. Lymphatic filariasis is commonly known as elephantiasis. 13th of February 2026 Current Affairs. 1. भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को 91वां स्थान प्राप्त हुआ है. India ranked 91st in the Corruption Perception Index 2025, improving from 96th position. 2. दिल्ली सरकार ने पुरानी लाडली योजना की जगह लखपति बिटिया योजना शुरू करने की घोषणा की है. The Delhi government announced the launch of Lakhpati Bitiya Yojana replacing the old Ladli scheme. 3. केंद्र सरकार ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा दिया है. The central government granted ex-serviceman status to officers of the military nursing service. 4. उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहली बार आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई है. उत्तर प्रदेश presented its first ever economic survey in the Legislative Assembly. 5. अजीत लाल को केंद्रीय गृह मंत्रालय में पूर्वोत्तर सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है. Ajit Lal, retired IPS, has been appointed as the Northeast Advisor to the Union Ministry of Home Affairs. 6. न्यूजीलैंड की टीम ने फिन एलन और टिम साइफिट की साझेदारी से T20 विश्व कप में 175 रनों का रिकॉर्ड बनाया है. New Zealand set a record partnership of 175 runs in T20 World Cup history by Finn Allen and Tim Seifert. 7. इट मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 घंटे के भीतर गलत और भ्रामक आई कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है. The IT Ministry directed social media platforms to remove false and misleading AI-generated content within 3 hours. 8. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Kumar Bhaskar Varman Setu built on the Brahmaputra River. 9. भारतीय सेना की पूर्वी कमान का अलंकरण समारोह उमरोई, मेघालय में आयोजित किया गया. The investiture ceremony of the Eastern Command of the Indian Army was held in Umroi, मेघालय. 10. प्राची गायकवाड़ ने एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता है. प्राची गायकवाड़ won the gold medal in the 50m rifle 3 position junior event at the Asian Championships. 11. राष्ट्रीय विशाल सौर दूरबीन को मेरठ, लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है. The National Large Solar Telescope is being installed at Merak in Ladakh. 12. गिलबर्ट हिल, जो 200 फुट का अखंड बेसल्ट स्तंभ है, मुंबई में स्थित है. Gilbert Hill, a 200-foot monolithic basalt pillar, is located in Mumbai. 13. होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य जोरहाट, असम में स्थित है. होलोंगापार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन जोरहाट, असम. 14. नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को 45वां स्थान प्राप्त हुआ है. इंडिया रैंक्ड 45th इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025. 15. अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, जिसको लेकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच विवाद है. Almaty Dam is located on the Krishna River and is the subject of a dispute between Andhra Pradesh and Karnataka. The 14th of February 2026 Current Affairs. 1. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति डेटा के लिए 2012 के स्थान पर नया आधार वर्ष 2024 अपनाया गया है. The new base year for CPI inflation data has been changed from 2012 to 2024. 2. केंद्र सरकार के अनुसार आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाना अनिवार्य किया गया है. The Union government has made it mandatory to sing all 6 verses of Vande Mataram before the national anthem. 3. भारत की पहली राष्ट्रीय कंटेनर शिपिंग लाइन का नाम भारत कंटेनर शिपिंग लाइन रखा गया है. India's first national container shipping line has been named Bharat Container Shipping Line. 4. भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति अभ्यास 2026 राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया जाएगा. The Indian Air Force will conduct वायु शक्ति 2026 at Pokhran in Rajasthan. 5.
शोधकर्ताओं ने वैली ऑफ द किंग्स में प्राचीन तमिल ब्राह्मी शिलालेख मिस्र में खोजे हैं। Ancient Tamil Brahmi inscriptions have been discovered in Egypt's Valley of the Kings. 6. देश की पहली म्यूजिकल रोड जिस पर जय हो की धुन बजती है, मुंबई के कोस्टल रोड पर शुरू की गई है। India's first musical road playing the tune of Jai Ho has been inaugurated on Mumbai's coastal road. 7. आईसीसी ग्रीन ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पुरस्कार 2026 आरईसी लिमिटेड को मिला है। REC Limited has won the ICC Green Urja and Energy Efficiency Award 2026. 8. इंडिया AIA इम्पैक्ट समिट 2026 फरवरी में नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। The India AIA Impact Summit 2026 is being held in New Delhi in February. 9. गांधी सरोवर परियोजना का संबंध तेलंगाना राज्य से है। The Gandhi Sarovar project is related to the state of Telangana. 10. सैफ अंडर -19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। इंडिया हैज वॉन द SAFF अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप 2026 टाइटल। 11. पंचायत और नगर निगम चुनावों में कागजी मतपत्रों के उपयोग को कर्नाटक सरकार ने मंजूरी दी है। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ पेपर बैलेट्स इन लोकल इलेक्शंस। 12. मुंबई नगर निगम के नए मेयर के रूप में रितु तावड़े निर्विरोध चुनी गई हैं। रितु तावड़े हैज बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द न्यू मेयर ऑफ मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। 13. ओडिशा रिंग रोड परियोजना के लिए कपिलाश वन्यजीव अभयारण्य की वन भूमि को मंजूरी दी गई है। फॉरेस्ट लैंड ऑफ कपिलाश वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द ओडिशा रिंग रोड प्रोजेक्ट। 14. हाल ही में भारत में कीचड़ ज्वालामुखी का विस्फोट दिलीपुर में दर्ज किया गया है। A mud volcano eruption has been recorded recently at Diglipur in the Andaman Islands. 15. सरला माहेश्वरी दूरदर्शन की जानी मानी हस्ती थी, जो कि भारत का सरकारी प्रसारण संगठन दूरदर्शन है। सरला माहेश्वरी was a well-known face of Doordarshan, India's public broadcasting organization. February 2026 Current Affairs. 1. रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। The Defense Acquisition Council has approved the purchase of 114 Rafale fighter jets from France for the Indian Air Force. 2. भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण वसूली एजेंट सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही संपर्क कर सकते हैं। As per the new guidelines of the Reserve Bank of India, recovery agents can contact customers only from 8 a.m. to 7 p.m. 3. फरवरी 2026 में उद्घाटित सरकारी परिसर को सेवा तीरथ नाम दिया गया है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित है। सेवा तीरथ is the new name given to the government complex of the Prime Minister's office inaugurated in February 2026. 4. नए पीएमओ के साथ कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी उद्घाटन किया गया है, जिनमें प्रमुख मंत्रालय स्थित हैं। कर्तव्य भवन 1 and 2 were inaugurated along with the new PMO 2 house की ministries. 5. असम राइफल्स के डॉग स्क्वाड में तंगखुल हुई और कॉम्बाई नस्ल के देसी कुत्तों को शामिल किया गया है। टैंगखल हुई and कॉम्बाई breeds have been inducted into the dog squad of Assam Rifles. 6. विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम रायपुर में आयोजित किया गया था। A special program on World Radio Day was organized in Raipur by All India Radio and UNESCO. 7. इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन पहली बार भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है। The IMACC 2026 is being organized for the first time by the Indian Army. 8. सरकार ने घरेलू बाजार को स्थिर करने के लिए 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात को मंजूरी दी है। The government has approved the export of 25 lakh metric tons of wheat. 9. पुनीत अग्रवाल को थाईलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। पुनीत अग्रवाल has been appointed as India's new ambassador to Thailand. 10. सहकारिता मंत्रालय ने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 पहल शुरू की है। The Ministry of Cooperation has launched the White Revolution 2.0 initiative. 11. भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं।
India has signed a social security agreement with the United Kingdom. 12. 62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 जर्मनी में आयोजित किया जा रहा है. The 62nd Munich Security Conference 2026 is being held in Germany. 13. भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक प्रतिवर्ष ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है. The Corruption Perceptions Index is released annually by Transparency International. 14. 13 फरवरी 2026 को सरोजिनी नायडू की 147वीं जयंती मनाई गई. The 147th birth anniversary of Sarojini Naidu was celebrated on the 13th of February 2026. 15. विश्व रेडियो दिवस 2026 की आधिकारिक थीम रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI is a tool, not a voice, रखी गई है. The official theme of World Radio Day 2026 is Radio and Artificial Intelligence, AI is a tool, not a voice. The 16th of February 2026 Current Affairs. 1. हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को 75वां स्थान प्राप्त हुआ है. India has secured the 75th rank in the recently released Henley Passport Index 2026. 2. हाल ही में शुरू की गई पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा. Under the PM Rahat scheme, road accident victims will receive cashless treatment up to 1.5 lakh rupees. 3. नई दिल्ली में आयोजित एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप की 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में अमनप्रीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है. Amanpreet Singh has won the gold medal in the 25m center fire pistol event at the Asian Rifle Pistol Championship in New Delhi. 4. हाल ही में पुष्प शो पलाश महोत्सव 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है. The Palash Mahotsav 2026 flower show has been inaugurated in New Delhi. 5. हाल ही में चर्चा में रही कलेगना मगला उरिमाई थितम योजना तमिलनाडु सरकार से संबंधित है. The Kalagnar Magalya Urimai Thitam scheme is related to the Tamil Nadu government. 6. इंडिया एनर्जी वीक 2025 के दौरान ऑयल इंडिया लिमिटेड को FIPI अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है. Oil India Limited has been awarded the FIPI Award 2025 during India Energy Week 2025. 7. हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संजय अग्रवाल को ओ स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में 3 वर्ष का विस्तार दिया है. Recently, the Reserve Bank of India has given a 3-year extension to Sanjay Agrawal as MD and CEO of a small finance bank. 8. फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान असम के डिब्रूगढ़ में नवनिर्मित इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप पर उतरा. In February 2026, Prime Minister Narendra Modi's plane landed on the newly constructed emergency landing strip at Dibrugarh in Assam. 9. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित कुमार भास्कर वर्मा सेतु ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है. The Kumar Bhaskar Verma Bridge inaugurated by Prime Minister Narendra Modi is built over the Brahmaputra River. 10. हाल ही में चर्चा में रही तमसा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है. The Tamsa River, which was in the news recently, is a tributary of the Ganga River. 11. हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सोराया अघाई को ईरान की पहली महिला सदस्य के रूप में चुना है. The International Olympic Committee has elected Soraya Aghai as its first female member from Iran. 12. हाल ही में केरल के तिरुनावया में महामग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसे दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहा जाता है. The Mahamagha Mahotsav, known as the first Kumbh of South India, was recently held in Tirunavai, Kerala. 13. 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित किया गया है. The 39th Indian International Leather Fair was organized in Chennai, Tamil Nadu. 14. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंता नागेश्वरन की देखरेख में तैयार किया गया था. The Economic Survey 2025-26 was prepared under the supervision of Chief Economic Advisor V. अनंता नागेश्वरन. 15. विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का चयन किया गया था.
Balaghat district of Madhya Pradesh was selected for the pilot project under the world's largest food storage scheme. The 17th of February 2026 current affairs. 1. नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का मुख्य विषय सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय रखा गया है. The theme of the India AI Impact Summit 2026 held in New Delhi is For the Welfare of All, For the Happiness of All. 2. अपनी पुस्तक हिंदी हिंदू हिस्टोरीज के लिए वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित आनंद केंटिश कुमारस्वामी पुरस्कार प्रो. चारू गुप्ता ने जीता है. Prof. Charu Gupta has won the prestigious Anand Kentish Kumaraswamy Prize 2026 for his book Hindi Hindu Histories. 3. हालिया संसदीय चुनावों में बहुमत हासिल करने के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं. After securing a majority in recent parliamentary elections, Tariq Rahman is set to become the new Prime Minister of Bangladesh. 4. हाल ही में राज्यव्यापी मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात में शुरू की गई है. The statewide Chief Minister Gramadhan Yojana has recently been launched in Gujarat. 5. भारत का पहला सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बायोबैंक लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए शुरू किया गया है, जो मुख्य रूप से आनुवंशिक उत्परिवर्तन से संबंधित है. India's first government-supported national biobank for lysosomal storage disorders is mainly associated with genetic mutation. 6. भारत ने पहली बार कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान संभाली है, जिसका मुख्यालय बहरीन में स्थित है. India has taken command of Combined Task Force 154 for the first time, whose headquarters is located in Bahrain. 7. हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को पुनः शुरू करने की घोषणा की है. The Chief Minister of Jammu and Kashmir has recently announced the resumption of the Tulbul navigation project. 8. आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा के लिए आर्कटिक सेंट्री मिशन नाटो द्वारा लॉन्च किया गया है. The Arctic Sentry mission has been launched by NATO to monitor and protect the Arctic region. 9. भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जरथॉन 2026 के आयोजन की घोषणा पंजाब नेशनल बैंक ने की है. Punjab National Bank has announced the organization of Soljathon 2026 in honor of the Indian Army. 10. नैतिक, समावेशी और जिम्मेदार आई उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है. The nationwide digital campaign for responsible AI use has been launched by the Ministry of Electronics and Information Technology. 11. देश की पहली अंडरवाटर ट्विन ट्यूब सड़क और रेल सुरंग ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जाएगी. India's first underwater twin tube road and rail tunnel will be built under the Brahmaputra River. 12. आरबीआई द्वारा अधिकृत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से पीडीएस सब्सिडी ट्रांसफर करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है. Gujarat has become the first state to transfer PDS subsidies using central bank digital currency (CBDC) authorized by the Reserve Bank of India. 13. हीर्थ पोछते पर्व मुख्य रूप से कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जिस अवसर पर प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी. The Herat Poster Festival, on which the Prime Minister extended greetings, is mainly celebrated by the Kashmiri Pandit community. 14. यूनानी पद्धति में नवाचार और साक्ष्य पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया. A 2-day national conference on innovation and evidence in the Unani system of medicine was organized in Mumbai. 15. छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है. The 6th India-France Annual Defense Dialogue is being organized in Bengaluru. 18th of February 2026 Current Affairs. 1. दिल्ली सरकार ने जमीनों के डिजिटल रिकॉर्ड और पहचान के लिए भू आधार योजना शुरू की है, जिसके तहत 14 अंकों का विशिष्ट भूखंड पहचान नंबर दिया जाएगा. The Delhi government has launched the BHU Aadhaar scheme for digital land records and identification, under which a 14-digit unique plot ID will be provided. 2. केरल सरकार ने हाल ही में विकास और लोकतंत्र पर विजन 2031 नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है. The Kerala government recently organized an international conference on development and democracy named Vision 2031.
3. वनवासियों की स्वास्थ्य सेवा में योगदान के लिए डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनकी पत्नी सुनीता गोडबोले को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। Dr. Ramchandra Godbole and his wife Sunita Godbole have been awarded the Padma Shri for their contribution to tribal health care. 4. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने घर घर कचरा पृथक्करण और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनुपम कॉलोनी मॉडल लागू किया है। The New Delhi Municipal Council has implemented the Anupam Colony model for दूर-to-दूर waste segregation and decentralized waste management. 5. अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन मंडी, हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। The International Shivratri Festival is being organized in Mandi, हिमाचल प्रदेश। 6. हाल ही में ढाका में बांग्लादेश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला represented India at the swearing-in ceremony of the Bangladesh government in Dhaka. 7. हाल ही में इसरो के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का मलबा मालदीव के एक निर्जन द्वीप पर पाया गया है। Recently, the debris of ISRO's launch vehicle Mark 3 was found on an uninhabited island in Maldives. 8. तामन बंदरगाह रूस का प्रमुख बंदरगाह है और यह काला सागर के तट पर स्थित है। Taman port is a major port of Russia and is located on the coast of the Black Sea. 9. जोहान्स क्लेबो शीतकालीन ओलंपिक के इतिहास में 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं। Johannes Klebo has become the first athlete to win 9 gold medals in the history of the Winter Olympics. 10. मिलान कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स 2026 में स्की पर्वतारोहण स्कीमो खेल पहली बार शामिल किया गया है। Ski mountaineering skimo has been introduced for the first time at the Milan Cortina Winter Olympics 2026. 11. अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू और एक्सरसाइज मिलन 2026 की मेजबानी विशाखापत्तनम ने की है। विशाखापट्टनम hosted the International Fleet Review and Exercise Milan 2026. 12. टेट्राटेनियम पेकाडे नामक पौधे की नई प्रजाति की खोज पश्चिमी घाट में की गई है। A new plant species named Tetratium pachydae has been discovered in the Western Ghats. 13. हाल ही में विस्फोट करने वाला पिटन डे ला फोर्नेस ज्वालामुखी रियूनियन द्वीप पर स्थित है। The recently erupted Piton de la Fournaise volcano is located on Reunion Island. 14. गुजरात सरकार ने उदय कोटक को गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। The Gujarat government has appointed Uday Kotak as the new chairman of Gift City. 15. हुआन एंटोनियो समरंज को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। Juan Antonio Samaranch has been appointed as the new vice president of the International Olympic Committee (IOC). 19th of February 2026 Current Affairs. 1. स्मृति मंधाना को वर्ष 2025 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्मृति मंधाना has been awarded the BBC Indian Sportswoman of the Year award for the year 2025. 2. दिव्या देशमुख शतरंज ने हाल ही में BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। दिव्या देशमुख चेस हैज रिसेंटली वॉन द BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। 3. डॉक्टर J.S. सेहरावत को अमेरिकन अकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का फेलो चुना गया है। डॉक्टर J.S. सेहरावत हैज बीन इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज। 4. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में माउंटेन रडार और मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड द माउंटेन रेडार एंड मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी इन बेंगलुरु। 5. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने AMD के साथ भारत में 200 मेगावाट का AI डेटा सेंटर बनाने के लिए साझेदारी की है। Tata Consultancy Services has partnered with AMD to build a 200 MW AI data center infrastructure in India. 6. मास्टरकार्ड और वीजा ने भारत में लेनदेन के लिए पास की सेवा शुरू की है। मास्टरकार्ड एंड वीजा have launched the Passkey service in India for secure digital transactions. 7. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को मंजूरी दी है। The National Green Tribunal has cleared the Great Nicobar Island project. 8. टोरंट पावर ने लासन और टुब्रो की नाभा पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किया है।
Torrent Power has acquired Nabha Power Limited of Larsen और Toubro। 9 जनवरी 2026 में भारत की WPI मुद्रास्फीति दर 1.81% रही है। India's wholesale price index inflation rate in January 2026 was recorded at 1.81%। 10 नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल शुरू की है। The National Highways Authority of India has launched an initiative to develop bee corridors। 11 इंडियन नेवी के कैडेट प्रशिक्षण जहाज कृष्णा का जलावतरण कट्टुपल्ली शिपयार्ड में हुआ है। The Indian Navy's cadet training ship Krishna was launched at Kattupalli shipyard in Chennai। 12 AI Premiers of India पुस्तक को अटल इनोवेशन मिशन द्वारा लॉन्च किया गया है। The coffee table book AI Premiers of India has been launched by Atal Innovation Mission। 13 भारत विस्तार डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ जयपुर से किया गया है। The भारत विस्तार डिजिटल प्लेटफॉर्म has been launched from जयपुर। 14 वार्षिक खेल सप्ताह 2026 का शुभारंभ कॉमनवेल्थ गेम्स कॉम्प्लेक्स में हुआ है। Annual Sports Week 2026 has been launched at the Commonwealth Games Complex in New Delhi। 15 रमेश गणेश आयर को कोटक महिंद्रा बैंक का अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। Ramesh Ganesh Iyer has been appointed as an additional and independent director of Kotak Mahindra Bank। The 20th of February 2026 Current Affairs। 1 होबार्ट में होने वाले FIH पुरुष प्रो लीग 2025-26 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान हार्दिक सिंह को बनाया गया है। Hardik Singh has been named the captain of the Indian men's hockey team for the FIH Men's Pro League 2025-26 to be held in Hobart। 2 हाल ही में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और एयरबस के संयुक्त उद्यम द्वारा स्थापित की गई है। Recently, India's first private helicopter final assembly line has been inaugurated as a joint venture of Tata Advanced Systems and Airbus। 3 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल ने भारत में हैमर मिसाइल बनाने के लिए फ्रांसीसी कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ समझौता किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड has signed an agreement with Safran Electronics or Defense to manufacture hammer missiles in India। 4 हाल ही में भारत ने तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 1 को स्वदेशी तकनीक से सफलतापूर्वक फिर से शुरू किया है। Recently, India has successfully restarted Unit 1 of the Tarapur nuclear power plant using indigenous technology। 5 विश्व का पहला बांस आधारित बायो इथेनॉल संयंत्र नुमालीगढ़, असम में स्थापित किया गया है। The world's first bamboo-based bioethanol plant has been established in Numaligarh, Assam। 6 पुरुष T20 विश्व कप के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी युवराज सामरा कनाडा बने हैं। Yuvraj Samra of Canada has become the youngest player to score a century in men's T20 World Cup history। 7 हाल ही में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में वेव्स क्रिएटर्स कॉर्नर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया है। The Waves Creators Corner at the India AI Impact Summit was inaugurated by Union Minister Ashwini Vaishnav। 8 हाल ही में चर्चा में रही मादा चीता गामिनी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था। Female cheetah gamini, recently in news, was brought to India from South Africa। 9 वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस करेगा। France will chair the 52nd G7 summit to be held in 2026। 10 इंडिया AI मिशन 2.0 के तहत सरकार ने 20,000 नए GPU जोड़ने की घोषणा की है। Under India AI Mission 2.0, the government has announced the addition of 20,000 new GPUs। 11 केरल सरकार ने टाइडल फ्लडिंग को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। The Kerala government has declared tidal flooding as a state-specific disaster। 18 फरवरी 2026 को रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। The 80th anniversary of the Royal Indian Navy mutiny was observed on the 18th of February 2026। 13 ताज महोत्सव 2026 का आयोजन 18 से 27 फरवरी तक आगरा, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ताज महोत्सव 2026 is being organized in Agra,
उत्तर प्रदेश फ्रॉम February 18 to 27। 14 T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले इतिहास के पहले गेंदबाज राशिद खान बने हैं। Rashid Khan has become the first bowler in history to take 700 wickets in T20 cricket। 15 विशेष आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए एक्सेस पास का शुभारंभ वेरावल, गुजरात में किया जाएगा। The access pass for fishing in the EEZ will be launched in Veeraval, Gujarat, the 21st of February 2026। करंट अफेयर्स। 1 भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 की आधिकारिक थीम यूनाइटेड थ्रू ओशंस एंड ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप है। The official theme of International Fleet Review 2026 organized by Indian Navy is United through Oceans or Bridges of Friendship। 2 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों की मदद के लिए IIT कानपुर द्वारा विकसित साथी पोर्टल को AI इम्पैक्ट समिट में राष्ट्रीय मान्यता मिली है। The Sathi educational portal developed by IIT Kanpur to help students prepare for competitive exams has received national recognition at the AI Impact Summit। 3 भारत और अमेरिका के बीच सीधा सबसी केबल रूट बनाने के लिए अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल की घोषणा गूगल ने की है। Google has announced the America India Connect initiative to build a direct subsea cable route between India and the US। 4 पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल SL3 श्रेणी में स्वर्ण पदक प्रमोद भगत ने जीता है। प्रमोद भगत has won the gold medal in the men's singles SL3 category at the Para Badminton World Championships। 5 BBC इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड अंजलि भागवत को दिया गया है। अंजलि भागवत was awarded the Lifetime Achievement Award at the BBC Indian Sportswoman of the Year Awards 2025। 6 कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कुनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। 7 तमिलनाडु से GI टैग प्राप्त सलेम साबूदाना की पहली खेप कनाडा को निर्यात की गई है। The first consignment of ghee tagged Salam Sago from Tamil Nadu has been exported to Canada। 8 बराक घाटी असम राज्य में स्थित है। बारक वैली इज लोकेटेड इन असम। 9 भारत में पहले यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। The first European legal gateway office in India has been inaugurated in New Delhi। 10 इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में AI इम्पैक्ट स्टार्टअप पुस्तक का विमोचन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है। The book AI Impact Startup has been released by the Ministry of Electronics and Information Technology at the India AI Impact Summit। 11 वैश्विक स्वास्थ्य में AI पहल पर पहले भारत फ्रांस परिसर का उद्घाटन नई दिल्ली स्थित एम्स में किया गया है। The first Indo-French campus on AI in global health has been inaugurated at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi। 12 लक्षद्वीप के अगात्ती द्वीप की प्रवाल भित्तियों में गैलाथिया बालसुब्रमण्यनी नामक केकड़े की नई प्रजाति की खोज की गई है। A new species of crab, Galathea balasubramaniani, has been discovered in the coral reefs of Agatti Island। 13 इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान वॉयसरा को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। Voicera has been launched by the Ministry of Electronics and Information Technology during the India AI Impact Summit 2026। 14 लिम्फेडिमा मानव शरीर के लसिका तंत्र से संबंधित एक प्रमुख बीमारी है। Lymphedema is a major disease related to the lymphatic system of the human body। 15 2880 मेगावाट क्षमता वाली दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। The 2880 megawatts Dibang multipurpose project is being constructed in Arunachal Pradesh। 2 of February 2026 करंट अफेयर्स। 1 2027 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी स्विट्जरलैंड करेगा। स्विट्जरलैंड विल होस्ट द AI इम्पैक्ट समिट इन 2027। 2 भारत में 100 मेगावाट AI अवसंरचना विकसित करने के लिए टाटा समूह ने OpenAI के साथ साझेदारी की है। Tata Group has partnered with OpenAI to develop 100 MW AI infrastructure in India। 3 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है।
Atal Canteen was inaugurated in Delhi to provide subsidized food to economically weaker sections. 4. रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल मुकाबला कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के बीच खेला जाएगा. The final match of Ranji Trophy 2025-26 will be played between Karnataka and Jammu और कश्मीर. 5. भारत ने कानपुर, लुधियाना, भुवनेश्वर, हैदराबाद और चेन्नई में विमानन कौशल हब स्थापित करने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है. India has signed an agreement with France to set up aviation skill hubs in Kanpur, Ludhiana, Bhubaneswar, Hyderabad and Chennai. 6. नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारत ने अमेरिका के साथ पैक्स सिलिका घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं. India signed the Pax Silica Declaration with America at the India AI Impact Summit in New Delhi. 7. 9वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा. The Chiefs of Naval Staff Conference of the 9th ICANS will be held in Visakhapatnam. 8. मेरी परंपरा मेरी विरासत विषय पर आयोजित विचार विमर्श सत्र पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है. The मेरी परंपरा मेरी विरासत initiative is operated under the Ministry of पंचायती राज. 9. भारत ने डिजिलॉकर पायलट प्रोजेक्ट के लिए केन्या के साथ समझौता किया है. India has signed an agreement with Kenya for the DigiLocker pilot project. 10. हाल ही में निधन हुए डॉक्टर रिकी ए जे सिंह कौन शिलोंग मेघालय लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे. डॉक्टर रिकी ए जे सिंकन was the member of parliament from Shillong, मेघालय. 11. हाल ही में चर्चा में रहा नंधौर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड राज्य में स्थित है. नंधौर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन उत्तराखंड. 12. हाल ही में चर्चा में रहा कोपरली हाइड्रो प्रोजेक्ट असम राज्य में स्थित है. कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन असम. 13. अर्थशॉट प्राइज 2026 की मेजबानी मुंबई शहर करेगा. मुंबई विल होस्ट द अर्थशॉट प्राइज 2026. 14. जिब्राल्टर जलडमरू मध्य स्पेन और मोरक्को के मुख्य भूभागों को अलग करता है. द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट्स द मेनलैंड टेरिटरीज ऑफ स्पेन एंड मोरक्को. 15. हाल ही में फटने के कारण चर्चा में रहा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कनलाउन फिलीपींस में स्थित है. The active volcano Mount Canlao is located in the Philippines. The 23rd of February 2026 current affairs. 1. हाल ही में भारतीय नौसेना के गोवा समुद्री सम्मेलन 2026 का 5वां संस्करण गोवा में शुरू हुआ है. Recently, the 5th edition of Indian Navy's Goa Maritime Conference 2026 has started in Goa. 2. हाल ही में भारत का पहला समर्पित क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई विश्वविद्यालय परिसर अमरावती, आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है. Recently, India's first dedicated quantum and artificial intelligence I university campus has been announced to be established in Amravati, Andhra Pradesh. 3. हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय अनुसंधान संस्थान में टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया टेड वैक्सीन का शुभारंभ किया है, जिसे पूरी तरह स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है. Recently, Union Health Minister Jagat Prakash Nadda launched the indigenously manufactured tetanus and adult diphtheria TED vaccine at the Central Research Institute in Himachal Pradesh. 4. हाल ही में प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार मणिशंकर मुखर्जी शंकर, जो अपनी उत्कृष्ट कृति चौरंगी के लिए जाने जाते थे, का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. Recently, eminent Bengali novelist Mani Shankar Mukherjee Shankar, famous for his masterpiece Choringi, passed away at the age of 92. 5. हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 असम राज्य में लॉन्च किया गया है. Recently, the Vibrant Village Program 2 has been launched in Assam. 6. हाल ही में भारत ने यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यबल का शुभारंभ किया है. Recently, India has launched the Offshore Wind Energy Task Force in collaboration with the United Kingdom. 7. हाल ही में ओडिशा सरकार ने भूमि संबंधी धोखाधड़ी रोकने और संपत्ति लेनदेन में पारदर्शिता लाने के लिए QR कोड सक्षम भूमि पट्टे शुरू करने की घोषणा की है.
Recently, the Odisha government announced the launch of QR code-enabled land leases to prevent land fraud and ensure transparency in property transactions. 8. हाल ही में भारतीय ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की मैराथन वॉक में रामबाबू ने स्वर्ण पदक जीता है. Recently, Rambabu won the gold medal in the men's marathon walk at the Indian Open Race Walking Championship 2026. 9. हाल ही में मानिक गुप्ता का निधन हो गया है, जो एक प्रसिद्ध क्रिकेट अंपायर थे. Recently, Manak Gupta, who was a famous cricket umpire, passed away. 10. हाल ही में शोधकर्ताओं ने मिजोरम में कोबरा लिली की नई प्रजाति एरिसिमा सियाएंस की खोज की है. Recently, researchers discovered a new species of cobra lily, Erisima siaens, in Mizoram. 11. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध अतिक्रमण हटाने के कारण चर्चा में रहा कोलेरू वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है. Recently, Koleru Wildlife Sanctuary, which was in the news for removing illegal encroachments, is located in Andhra Pradesh. 12. हाल ही में वैज्ञानिकों ने केले की फसल को जानलेवा पनामा रोग से बचाने के लिए एक जीन की खोज की है. Recently, scientists discovered a gene to protect banana crops from the deadly Panama disease. 13. हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी, द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक विजय गोयल हैं. Recently released book अटल बिहारी वाजपेयी, द इटर्नल स्टेट्समैन has been authored by विजय गोयल. 14. हाल ही में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित उपयोग को लेकर 88 देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं. Recently, 88 countries signed the New Delhi Declaration on the Safe Use of Artificial Intelligence at the India AI Impact Summit. 15. हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आम जनता की शिकायतों के ऑनलाइन समाधान के लिए सीएम जनसुनवाई पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. Recently, the Chief Minister of Delhi launched the CM Jansunwai Portal mobile app for online grievance redressal of the public. 4th of February 2026 Current Affairs. 1. हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा स्वदेश निर्मित टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया टेड वैक्सीन को केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली में लॉन्च किया गया है. Recently, the indigenously manufactured tetanus and adult diphtheria TED vaccine was launched at the Central Research Institute, Kasauli by the Union Health Minister. 2. हाल ही में शांतमनु को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर शपथ दिलाई गई है. Recently, Shantmanu has been sworn in as the State Election Commissioner of the Union Territory of Jammu and Kashmir. 3. हाल ही में आशा शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. Recently, Asha Sharma has been appointed as the new Vice President of Microsoft Gaming. 4. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन मेरठ में किया है. Recently, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the country's first regional rapid transit system RRTS metro network in Meerut. 5. हाल ही में भारत ने दुर्लभ पृथ्वी और महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग के लिए ब्राजील के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. Recently, India has signed agreements with Brazil to cooperate in rare earth and critical minerals. 6. भारत और ब्राजील ने वर्ष 2030 तक $30 अरब का वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है. India and Brazil have set an annual bilateral trade target of $30 billion to be achieved by 2030. 7. हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है. Recently, the first semiconductor park of Uttar Pradesh is being established in Greater Noida. 8. हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बॉर्डरमैन मैराथन 2026 का आयोजन अमृतसर में किया है. Recently, the Border Security Force organized the Borderman Marathon 2026 in Amritsar to mark 60 years of its establishment. 9. हाल ही में कृषि क्षेत्र में तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए AI4 एग्री 2026 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई में किया गया है. Recently, the AI4 Agri 2026 Summit was inaugurated in Mumbai to promote technological development in agriculture. 10.
फरवरी 2026 में भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। In February 2026, the National Roundtable Conference of the Election Commission of India and State Election Commissioners will be held at Bharat Mandapam, New Delhi। 11. हाल ही में बिहार ने खुद को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया है। Recently, Bihar has declared itself as a Naxal-free state। 12. हाल ही में समीर कनोडिया को CEO of the Year पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। Recently, Sameer Kanodia has been awarded the CEO of the Year award। 13. हाल ही में केरल की कैबिनेट ने राज्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नेटिविटी कार्ड विधेयक को अधिकृत पहचान दस्तावेज के रूप में मंजूरी दी है। Recently, the Kerala cabinet approved the Nativity Card Bill as an authorized identity document for availing state services। 14. हाल ही में खबरों में रहा ड्रोग पैराशूट भारत के गगनयान मिशन से संबंधित है। Recently, the drogue parachute in news is associated with India's Gaganyaan mission। 15. हाल ही में भारतीय फिल्म बूंद ने बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। Recently, the Indian film Boom won the prestigious Best Children's or Family Film Award at the BAFTA Awards 2026। 25 February 2026 Current Affairs। 1. ACC महिला एशिया कप इमर्जिंग टीम्स का खिताब भारत ए ने बांग्लादेश ए को पराजित कर जीता है। इंडिया ए डिफीटेड बांग्लादेश ए टू विन द ACC विमेंस एशिया कप इमर्जिंग टीम्स टाइटल। 2. वनवासियों को शिक्षित करने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान हेतु छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की डॉक्टर बुधरी ताती को पद्म श्री सम्मान प्रदान किया गया। Dr. Budari Tati, a woman from Dantewada district of Chhattisgarh, was awarded the Padma Shri for her contribution in educating forest dwellers and empowering women। 3. प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित 82 किलोमीटर लंबा देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर दिल्ली और मेरठ शहरों के मध्य संचालित है। The country's first 82-km long regional rapid transit system RRTS corridor operates between Delhi and Meerut cities। 4. चंडीगढ़ में आयोजित 13वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में पुरुषों की हाफ मैराथन का स्वर्ण पदक साहिल पंजाब ने जीता है। Sahil Punjab has won the gold medal in the men's half marathon at the 13th Indian Open Race Walking Championship held in Chandigarh। 5. पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा हाल ही में बंगलार युवा साथी योजना का शुभारंभ किया गया है। The West Bengal state government has recently launched the Banglar युवा साथी स्कीम। 6. हाल ही में चर्चा में रहे विवादित द्वीप डोकडो ताकेशिमा पर दक्षिण कोरिया और जापान देशों के बीच क्षेत्रीय विवाद है। South Korea and Japan have a territorial dispute over the disputed island Dokdo Takeshima। 7. हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। The statue of freedom fighter C. Rajagopalachari was recently unveiled at राष्ट्रपति भवन। 8. हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दीमापुर रेलवे स्टेशन को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के लिए ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। Dimapur railway station has been awarded the prestigious Eat Right Station certification by the Food Safety and Standards Authority of India। 9. हाल ही में राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। The Rajaji festival is being organized recently at राष्ट्रपति भवन। 10. हाल ही में असुरक्षित रक्त चढ़ाने के कारण थैलेसीमिया से पीड़ित कुछ बच्चे HIV संक्रमित पाए गए हैं और थैलेसीमिया मुख्य रूप से एक आनुवंशिक रक्त विकार है। Recently, some children suffering from thalassemia have been found HIV infected due to unsafe blood transfusion, and thalassemia is mainly a genetic blood disorder। 11. हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है नामक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। Recently, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship launched a nationwide awareness campaign called
बंधना है टू यहाँ जुड़ना है। 12. हाल ही में चर्चा में रही सुआवा नदी राप्ती नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। The Suave River, which was in the news recently, is a major tributary of the Rapti River. 13. हाल ही खबरों में रही रामसर सूचीबद्ध कोले आर्द्रभूमि केरल राज्य में स्थित है। Ramsar listed coal wetland, which was in the news recently, is located in Kerala. 14. हाल ही में सैयद 3G मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण ईरान देश द्वारा किया गया है। Iran has successfully tested the Sayed 3G missile recently. 15. हाल ही में पलामू टाइगर रिजर्व में शिक्षित महिलाओं को एम्बेसडर बनाने के लिए वंजीवी दीदी नामक एक नई पहल शुरू की गई है। Recently, in Palamu Tiger Reserve, a new initiative named Vanjeevi Didi has been started to make educated women ambassadors. The 26th of February 2026 Current Affairs. 1. भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति का नाम प्रहार PRAHAR है। India's first national counter-terrorism policy and strategy is named PRAHAR. 2. बाफ्टा पुरस्कार जीतने वाली भारतीय फिल्म बूंग की निर्देशक लक्ष्मी प्रिया देवी हैं। The director of the BAFTA winning Indian film Boong is Lakshmi Priya Devi. 3. 79वें बाफ्टा पुरस्कार में वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। The film One Battle After Another won the Best Film Award at the 79th BAFTA Awards. 4. दिल्ली सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों के लिए राहवीर योजना शुरू की है। The Delhi government has launched the Rahveer scheme to reward helpers of accident victims. 5. वैष्णवी अडकर सानिया मिर्जा के बाद W100 ITF टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वैष्णवी अडकर became the first Indian woman after Sania Mirza to reach a W100 ITF final. 6. फरवरी मार्च 2026 में होने वाला वज्र प्रहार अभ्यास का 16वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। The Vajra Prahar exercise in February-March 2026 will be its 16th edition. 7. हाल ही में आयोजित माई भारत बजट प्रतियोगिता में राजौरी जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजौरी डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड द रिसेंटली हेल्ड माई भारत बजट कॉम्पिटिशन। 8. वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 की मेजबानी गोवा राज्य कर रहा है। गोवा इज होस्टिंग द वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026। 9. हाल ही में CSIR ने ब्राजील के INPI के साथ TKDL के लिए समझौता किया है। Recently, CSIR signed an agreement with Brazil's INPI for access to TKDL. 10. हाल ही में खबरों में रही बैकाल झील साइबेरिया रूस में स्थित है। Lake Baikal, recently in the news, is located in Siberia, Russia. 11. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। Prime Minister Narendra Modi became the first Indian PM to address Israel's Knesset. 12. फरवरी 2026 में आयोजित दिल्ली ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब स्टेफानोस साकेलारिडिस ने जीता। Stefanos Sakellaridis won the men's singles title of the Delhi Open 2026. 13. हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर को दिया गया है। Recently, Nidhi Chibbar was given additional charge as CEO of नीति आयोग। 14. राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता जांच के लिए मोबाइल क्वालिटी कंट्रोल वैन शुरू की गई हैं। Mobile quality control vans have been launched to monitor highway quality. 15. राजस्थान सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे योजना 2026 शुरू की है। The Rajasthan government has launched the Homestay Scheme 2026 to promote rural tourism. The 27th of February 2026 Current Affairs. 1. कैबिनेट द्वारा 2026-27 सत्र के लिए कच्चे जूट का नया न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 5,925 रुपीस प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। The cabinet has approved the new minimum support price MSP for raw jute for the 2026-27 season at 5,925 rupees per quintal. 2.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 14 वर्ष की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर HPV वैक्सीन के लिए मुफ्त राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान की घोषणा की है। The Union Health Ministry has announced a free nationwide vaccination drive for cervical cancer HPV vaccine for girls aged 14. 3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर हवाई अड्डे पर 1677 करोड़ रुपए की लागत से सिविल एन्क्लेव के विकास को मंजूरी दी है। The Union Cabinet has approved the development of a civil enclave at Srinagar Airport in Jammu or Kashmir at a cost of 1,677 crore rupees. 4. एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने डोप टेस्ट से बचने के लिए भारतीय धाविका पूजा आत्माराम पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। The Athletics Integrity Unit has banned Indian runner Pooja Atmaram for 3 years for evading a dope test. 5. राजकीय रेलवे पुलिस प्रमुखों का 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। The 7th All India Conference of State Railway Police Chiefs was held at Vigyan Bhavan in New Delhi. 6. लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड में स्थित विशाल तारा वो G64 पॉली सुपर जायंट चरण में प्रवेश कर चुका है और इसके सुपरनोवा बनने की संभावना है। The massive star G64 in the Large Magellanic Cloud has entered the polysupergiant phase and is expected to explode as a supernova. 7. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के बुलढाना में राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन किया है। President Draupadi Murmu has inaugurated the National Arogya Fair 2026 in Buldhana, Maharashtra. 8. अंजदीप हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला तीसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। Anjdeep is the third anti-submarine warfare shallow watercraft recently inducted into the Indian Navy. 9. हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया। The पूसा कृषि विज्ञान मेला was recently organized in New Delhi. 10. भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन का 7वां संस्करण उत्तराखंड में शुरू हुआ है। The 7th edition of the joint military exercise Dharma Guardian between India and Japan has started in Uttarakhand. 11. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया का सबसे लंबा BVR हवाई संघर्ष बताया गया है। According to the International Institute for Strategic Studies report, Operation Sindoor has been described as the world's longest beyond visual range air conflict. 12. खबरों में रहा जेजू द्वीप दक्षिण कोरिया में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है। Jeju Island, which was in the news, is a World Heritage Site located in South Korea. 13. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कॉफी पाउडर के पैकेट पर चिकोरी पाउडर की मात्रा दर्शाने की सलाह दी है। The Food Safety and Standards Authority of India has advised displaying the quantity of chicory powder on coffee packets. 14. केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने DBT के 40वें स्थापना दिवस पर सुजविका पोर्टल लॉन्च किया है। The Union Minister of Science and Technology has launched the SUJVIKA portal on the 40th Foundation Day of DBT. 15. हाल ही में खबरों में रही तसोंगो झील सिक्किम राज्य में स्थित है। Songo Lake, which was in the news recently, is located in the state of Sikkim. Re 2026 Current Affairs. 1. भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच किया गया। The successful trial of India's first hydrogen train was conducted in Haryana between Jind and Sonipat. 2. जर्मनी, स्वीडन, जापान और चीन के बाद भारत हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। After Germany, Sweden, Japan and China, India has become the 5th country in the world to run a hydrogen train. 3. हाल ही में इजरायली संसद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट पदक से सम्मानित किया गया। Recently, Prime Minister Narendra Modi was awarded the Speaker of the Knesset Medal by the Israeli Parliament. 4. कटक में आयोजित पहले एशियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन T20 एशिया कप का खिताब भारत ने श्रीलंका को हराकर जीता। India won the inaugural ADCA T20 Asia Cup held in Cuttack by defeating Sri Lanka. 5. पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हिम कनेक्ट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।
HimConnect 2026 was organized by the Ministry of Environment in New Delhi. 6 फरवरी 2026 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया. The World Sustainable Development Summit was held in New Delhi in February 2026. 7 52 सप्ताहों में 52 सुधार, रेल मंत्रालय की एक व्यापक सुधार पहल है. 52 Reforms in 52 Weeks is a major reform initiative of the Ministry of Railways. 8 हाल ही में इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स पार करने वाले पहले विश्व नेता नरेंद्र मोदी बने हैं. Recently, Narendra Modi became the first world leader to cross 100 million followers on Instagram. 9 पार्सल और माल ढुलाई के लिए नेक्स्ट जेन रेल पार्सल ऐप दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा लॉन्च किया गया है. The Next Gen Rail Parcel app has been launched by South Central Railway for freight movement. 10 कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने नई दिल्ली में अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई. The Employees State Insurance Corporation celebrated its 75th anniversary in New Delhi. 11 रोमारी डोंडुवा बील और लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य असम राज्य में स्थित हैं. रोमारी डोंडुवा बी एंड लाखोवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आर लोकेटेड इन असम. 12 आधार केंद्रों की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने गूगल के साथ समझौता किया है. UIDAI has signed an agreement with Google to display information on authorized Aadhaar centers. 13 मार्क कार्नी, जो भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं. मार्क कार्नी, who is visiting India officially for the first time, is the Prime Minister of Canada. 14 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने CDEC के सहयोग से ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज शुरू किया है. The Blockchain India Challenge was launched in collaboration with CDAC. 15 रसायन और उर्वरक मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में J.P. नड्डा को नियुक्त किया गया है. J.P. Nadda has been appointed as the chairman of the Hindi Advisory Committee. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair and GKGS.